إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وسيدنا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم ووعد الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما يريد الله ليذهب عنكم وإسكان البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، ارباب ایمان، ماتمداران ائمہ بقی اور خصوصاً ماتمداران شہزادی قوم اسلامی اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو یہ اطلاع ہے کہ یہ مجلس رضا منعقد کی جا رہی ہے۔ ہر سال مجلس رضا اور جلوس ہم لوگ احتجاجی جلوس برآمد کرتے تھے اور اس بار موقع کی نزاکت اور یہ مصیبتوں پریشانیاں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر یہ کہہ کے ہم اپنے دامن کو جھاڑ نہیں سکتے، اپنا پلہ جھاڑ نہیں سکتے کہ ہم کیا کریں، ہم سے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس سے جو ہو سکتا ہے وہ کرے۔ اگر کسی سے مجلس اور جلوس نہیں منعقد ہو پا رہا ہے، مجلس رضا منعقد نہیں ہو پا رہی ہے، تو کم سے کم آپ اپنے اسٹیٹس کو اپڈیٹ کریں، آپ اپنی فیس بک وال سے، آپ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، جس سے بھی آپ ممکن ہو سکے احتجاج بلند کریں۔ اس لیے کیونکہ اگر مصیبتوں پر خاموش ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بزدل ہے۔ اگر مصیبتوں کے ساتھ لڑنا سیکھا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر یقین بھی ہے اور اعتماد بھی ہے، اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد کیا کہ دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب مصیبتیں ان کے اوپر پڑتی ہیں تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں و انا الیہ راجعون، اور پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو ہمارا تو شیوا ہی ہے کہ مصیبتوں پریشانیوں کے درمیان ہم نے زندگی گزاری ہے۔ ہم تو وہ ہیں، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں کہ بے آبو گیا صحرا میں جس نے پورے صحرا کو گلشن بنا ڈالا، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں کہ اگر جس کی قبر کہیں بن جائے تو وہ زمین نہیں بلکہ معلّہ ہو جائے گا۔ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں کہ اگر وہ صرف چند افراد اگر کسی جگہ پر جا کر سو جائیں تو وہ جنت البقیع کے نام سے مشہور ہو جائے۔ ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں کہ اگر یہ کسی نہر پر، کسی جگہ پر، کسی بھی جگہ اگر اپنے قدم رکھ دیں تو وہ جگہ باعث برکت و باعث زیارت ہو جایا کرتی ہے۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں
कि इनके यहाँ चाहे मुसीबतें हो चाहे परेशानियां हो, मगर इनकी जबान से बस एक फिक्रा निकलता है, हम अल्लाह की जानिब से आए हैं और हमें अल्लाह की जानिब पलट कर जाना है। लिहाजा ये मौका ऐसा मौका है कि यहाँ पर हमें कोई दस्तयाबी नहीं है, कोई मरहला कोई मौका दस्तयाब नहीं है, और हमारे लिए जरूरी है कि हम घर से बैठकर अपने अपने हिसाब से एहतजाज बुलंद करें। इसलिए क्योंकि ये एहतजाज बुलंद करने का मतलब ये है कि हम मजलूमीन के साथ हैं, हम जालिमों के साथ नहीं। अगर हम जालिमों के साथ होते तो हम भी और लोगों की तरह बैठ जाते। बहुत तवज्जो जाने गिरामी, ये मजलिस रिकॉर्ड होती हैं। अगर हम जालिमों के साथ होते तो हम भी उन्हीं की तरह से बैठ जाते कि जो बिल्कुल कल 8 शव्वाल को जैसे लगता है कि उनके सांप सूंघ गया हो, और उनको कोई सरोकार नहीं है कि कौन रसूलुल्लाह की बेटी थी, कौन रसूलुल्लाह के नवासे थे, जनाब खदीजा कौन थी, जनाब आमिना कौन थी, जनाब मादर अब्बास कौन थी, जनाब फातिमा बिन्त असद कौन थी, जनाब इब्राहिम इब्न मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी जो रसूलुल्लाह के बेटे हैं वो कौन थे, जनाब मोहसिन कौन थे, इनसे इनको कोई सरोकार नहीं है। जनाब अब्बास रसूलुल्लाह के चचा, ये वो लोग हैं जिनकी बकीर में कब्रें मौजूद थी और उसे मिस्मार कर दिया गया। इन सब को छोड़ दीजिए। आलम फिक्रिया ये है कि जो तुम्हारे खलीफा सानी नहीं बल्कि खलीफा सालिस है, तीसरे खलीफा जनाब उस्मान गनी की भी कब्र को इन्हीं मलूनों ने गिराया है। अब इंसानों के ऊपर जरूरी ये है कि अगर इंसान किसी तरह से कोई परेशानी मुश्किलात हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर तुम हमारे साथ ना बोलो, कम से कम अपने वालों के लिए तो बोलो। इसलिए क्योंकि तुम्हारे रसूल के मजार को गिराने की प्लानिंग हो चुकी थी, और ये न जाने की हो चुकी थी बल्कि प्लानिंग है। इसलिए कुछ साल पहले इस बात को मीडिया पर शो किया गया था। लोगों ने कहा कि रसूलुल्लाह की कब्र को ये शिफ्ट करना चाह रहे हैं। शिफ्ट करने का मतलब समझिए, वो कब्र की जगह को मिट्टी समेट उठाएंगे और ले जाके दूसरी जगह गड्ढा खोद के वहां डाल देंगे। ये जब वहां पहुंचते हैं और ये वहां की गवर्नमेंट जब लोग बताते हैं तो ये कहते हैं कि ये शिर्क है, इनको न चुमो, इनकी कब्र पे बोसा न दो। और आप अजीजान गिरामी, ये सारी बातें इसलिए बतानी पड़ रही है इसलिए क्योंकि जो है ये हमारे नौजवानों को नहीं मालूम है, तो दूसरों को फेस कैसे करेंगे हम। फिर उसके बाद अब आप मस्जिद नबवी जाइए, जो लोग मस्जिद नबवी गए हैं, मक्का मदीना गए हैं, वो खुद देखते हैं कि मस्जिद नबवी वो मस्जिद है कि जहाँ पर कभी भी अंधेरा नहीं होता, हमेशा 24 घंटा लोग वहाँ इबादतें किया करते हैं, रसूलुल्लाह की जाली के पास रहते हैं, पूरी मस्जिद जगमग जगमग करती रहती है, मगर रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक जो है वो बिल्कुल अंधेरी है, उसमें एक लाइट नहीं है। आप जाकर देख लें, किसी से पता कर लें, कोई आपका जानने वाला हो, कोई पूछने वाला, जाकर देख लीजिए, पूछ लीजिए क्या रसूलुल्लाह की कब्र के ऊपर जो जरी है तो क्या वहाँ एक लाइट भी जलती? हर इंसान ये कहते बिल्कुल अंधेरा छाया रहता है। रसूलुल्लाह की मजार है और बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ, और ये पूरी मस्जिद नबवी जगमगा रही है। मैं पूछूं है मुसलमानों, ये बताओ ये नमाज अफजल है या तुम्हारा नबी अफजल है? या मुसलमानों ये बताओ ये तुम्हारा रसूल अफजल है या रोजा रोजा अफजल है? ये बताओ क्या रोजा बताने वाला अफजल है, नमाज बताने वाला अफजल है? ये वो अफजल है कि नमाज अफजल है, रोजा अफजल है? तो हर इंसान यही कहेगा कि नमाज रोजा तो बात की बात है, सबसे पहले जिसने नमाज रोजे की तालीम दी वो अफजल है। तो अब ये लम्हे फिक्रिया है, हमको ये सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि मुसलमानों का ये अपनी मनमानी से राज चलाना, अपनी तरह से हुकूमत चलाना, ये तुमने अपने मदीने और मक्के की सरजमीन को सब्जियाबी कैसे मिली, ये सब्जदार कैसे हुए? अगर रसूल का कदम न पड़ता तो आज जो इतनी बड़ी दौलत सऊदी अरब के पास है वो कभी न होती, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लिक्विड गोल्ड, यानी तरल सोना जिसे कहते हैं। यानी ये वो सोना है कि जिसकी वजह से आज सऊदी अरब जो है सऊदी अरब कहलाता है। ये रसूलुल्लाह के कदमों की बरकत है कि रसूलुल्लाह ने अपने कदम वहां रखे और अल्लाह ने ऐसी नेमत अता की है कि जो कयामत तक बाकी रहने वाली है। यही तो वजह है कि सारे के सारे मुसलमान आज रसूलुल्लाह की बताई हुई और रसूलुल्लाह की पहुंचाए हुए दीन की वजह से पूरी दुनिया में आम है। हर इंसान कहाँ मदद भेज रहा है? सऊदी भेजता है, अपने पैसों को निकाल के कहाँ भेजता है? सऊदी भेज रहा है मुसलमानों को। क्यों?
ये बड़े बड़े फंड कहाँ से आते हैं? सऊदी से तो आते हैं। ये कहाँ से आया? ये रसूल अल्लाह के कदम की बरकत है। वाह हो तुम पर मुसलमानों कि तुमने उस रसूल को भुला दिया कि जिसका वजूद तुम्हारे लिए काबिले एहतराम भी था, काबिले सताइश भी था, काबिले हम्द भी था, काबिले शुक्र भी था, मगर तुमने उस रसूल की उस तमाम चीजों को भुला दिया कि जिसको तुम्हें भुलाना नहीं चाहिए था। अज़ीज़ान गिरामी, आप मस्जिद नबवी जब जाएं तो वहां देखेंगे कि जो मस्जिद नबवी का एरिया है, मस्जिद नबवी इतनी बड़ी नहीं थी जब रसूल अल्लाह के जमाने में। रसूल अल्लाह के जमाने में मस्जिद नबवी बहुत छोटी मस्जिद थी, उस वक्त की सबसे बड़ी थी, मगर इस लिहाज से बहुत छोटी मस्जिद थी। ये इन लोगों ने पूरा मोहल्ला बनी हाशिम तोड़कर उसी के अंदर ले लिया, जहां पर मोहल्ला बनी हाशिम, जहां पर सादात और इमाम हसन और इमाम हुसैन रहा करते थे, वो सारी चीजों को इन्होंने तोड़कर मस्जिद नबवी में इकट्ठा कर लिया। क्यों? क्योंकि ये जानते थे अगर मस्जिद नबवी से लगा हुआ मोहल्ला बनी हाशिम होगा तो ये आएंगे, वहां ज़ियारत करेंगे और ये कहेंगे कि ये हमारी जगह है, हम यहाँ पर जाएंगे ज़ियारत करने। इसलिए इस चीज को खत्म करने के लिए मस्जिद नबवी को भी उसी के अंदर ले लिया। मगर अज़ीज़ान गिरामी, आने तो वो वक्त भी आने दीजिए, हम उसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब उसी घर का एक चिराग आएगा और ये बताएगा कि यहाँ पर हमारे जद रहा करते थे, यह हमारी जद्दा की कब्र है। हम उसी इमाम का इंतजार कर रहे हैं। जब वो इमाम आएगा तो ये सारी की सारी चीजें हैं वो सब के सब खत्म होंगी और हम फिर उसी तरह से काबिज होंगे जिस तरह से बनी हाशिम और पूरी आले रसूल रहा करती थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने ये सोचा कि हम अगर निशानियां मिटा देंगे तो ये निशानियां मिट जाएंगी? नहीं, ये तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारी ये भूल है कि तुमने ये सोचा कि हम इनका निशान मिटा देंगे। तुम इनके निशान को क्या मिटाओगे? मैं आपको एक हदीस कोट करता हूँ, तुम इनके निशान को क्या मिटाओगे जिसके निशान को खुदा बाकी रखने। तुमने यही सोचा था ना इनके खानदान को खत्म कर देंगे, करबला में लोगों को मार देंगे, हर इमामों को जहर दे देंगे, सादात को चुनवा देंगे तो हम बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। नहीं, तुम्हारी ये गलती है और उसकी गलती का इजाला तुम खुद भुगतने वाले हो। छठे इमाम जाफर सादिक, मैं आपको इसलिए हदीस कोट कर रहा हूँ ताकि आप समझें कि अल्लाह जिसकी निशानियों को कायम रखना चाहता है उसे कोई मिटा नहीं सकते। हुआ क्या कि इमाम एक जगह से गुजर हो रहा था। इमाम अपने सहाबियों के साथ हैं, अपने चाहने वालों के साथ हैं और इमाम वहां से गुजर रहे हैं और एक जगह पड़ी कि जहां पर इमाम के चाहने वाले रहते थे। इमाम को मालूम हो कि हमारे चाहने वाले हमारे शिया हैं। फौरन इमाम की जबान से एक जुमला निकला, इमाम ने अपने हाथों को बुलंद किया और कहा, मेरे पालने वाले, ये जो मेरे चाहने वाले और मेरे जो शिया हैं, इन्हें बिखेर दे, इन्हें तू टुकड़े टुकड़े करके यहाँ से मुंतशिर कर दे, यानी इनकी फैमिली को मुंतशिर कर दे यहाँ से। अब जाहिर सी बात है, इमाम जो है, इमाम ने जो बात कही है सहाबियों के दिल में एक जाहिर सी बात है कि आखिर ये क्या वजह है कि जो इमाम ने ऐसा करना। जब इमाम कुछ दूर आगे बढ़े और फिर दूसरे मकाम पर पहुंचे तो इमाम को मालूम हुआ कि ये हमारे दुश्मनों की बस्ती है, यहाँ हमारे दुश्मन रहा करते हैं। इमाम ने फिर अपने हाथों को बुलंद किया और कहा, मेरे परवरदिगार आलम, इनको इसी जगह पर महदूद रख। अब दो बातें हो गई, चाहने वालों के लिए कहा कि इन्हें मुंतशिर कर दे और दुश्मनों के लिए कहा कि इन्हें तुम महदूद कर दे। अब रहा न गया, लोगों से इमाम से सवाल किया, इमाम ये बताइए कि जो आपके चाहने वाले थे आपने उनको बिखेरने की दुआ की और जो आपके दुश्मन थे उन्हें एक जगह रखने की दुआ की। कहा, तुम इस बात का फलसफा नहीं समझे, शायद इस बात का फलसफा कुछ और है। फौरन इमाम से कहा कि इमाम, जब आप इस बात के पीछे फलसफा रखते हैं तो हमें जरा इसकी वजाहत कर दें कि आपने ये दुआ क्यों की। कहा कि देखो, वो जो जहाँ चाहिए, जो हमारे यहाँ मुंतशिर, ये जहाँ पर मेरे दुश्मन लोग रहते हैं, अगर ये इस जगह से दूसरी जगह अगर पहुंचेंगे, अगर वो खानदान दूसरी जगह पहुंचेगा तो वहां पर जाने के बाद यही हमारी दुश्मनी हर जगह पर जाकर और हमारे फजाइलों को घटाएंगे और हमारे खिलाफ बुराइयां करेंगे। इसलिए मैंने कहा, परवरदिगार इनको यहीं रख, इसलिए क्योंकि ये कहीं अपना वायरस लेकर जाने न पाए। जो आजकल वायरस चला है उससे मुल्हक पाते हैं कि ये वायरस लेकर न जाने पाए,
क्योंकि ये ऐसा वायरस है कि 1 से 2, 2 से 4 होने वाला है। इसीलिए इमाम ने कहा था कि देखो परवरदिगार इस वायरस को यहीं रख दे, इसलिए क्योंकि देखिए इमाम कहीं ना कहीं हमारे जहन को ले जाना चाहते हैं। आज दुनिया इस बीमारी के पीछे इसलिए लगी कि जहाँ जो बीमार हो वहीं रुक जाए, वहीं थम जाए, इसलिए क्योंकि बुराई का काम है फैल जाना। बुराई का काम है फैल जाना। अब वो अच्छाई से बहुत तेजी से फैलती है, अच्छाई उतनी तेजी से नहीं फैलती जितनी तेज बुराई फैलती है। उसी तरह से हमने कहा देखो ये दिलों में जो हमारे बुग़्ज़ का वायरस लिए हैं, अगर ये जिस कोने में जाएंगे वो हमारे दिल के बुग़्ज़ का वायरस लेकर जाएंगे और लोगों को बुग़्ज़े अहले बैत में मुलव्विस करते जाएंगे। इसलिए हमने ये दुआ किया कि ये जहां भी है वहीं थम जाएं। और वो जो मेरे चाहने वाले थे वो ऐसे थे कि वो एक दवा की तरह है कि इन्हें एक जगह रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये हर जगह कोने कोने में पहुंच जाए। क्योंकि जिस तरह वायरस अगर पहुंच भी जाए तो दवा भी उसके पहले पहुंच जाए। इसलिए क्योंकि वायरस का इलाज दवा में है। मगर अज़ीज़ान गिरामी ये उस वक्त के दौर की बात थी। आज इंसान परेशान है, हम करें तो क्या करें। बस हम उनसे यही कहना चाहते हैं, अगर तुम ये चाहते हो कि बुग़्ज़ अहले बैत खत्म हो जाए तो बस उनका साथ थाम लो, उनका साथ पकड़ लो कि जिनके दिलों में हुब्बे आले मोहम्मद की शमा रोशन है। सलवा भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए मांगने का परवरदिगार उनको फैला दे ताकि वो जहां भी जाएंगे वहां पर हमारे दिलों की शमा रोशन करेंगे और हर जगह पर शमा जलाएंगे। तो इन्होंने ये सोचा था कि हम आज इनके घरों को मिटा डालेंगे तो ये घर मिट जाएंगे। तुम्हारी क्या वसात है कि तुम अहले बैत के घराने को मिटा सको। आज दुनिया में कोई न मिले मगर अहले बैत का घराना जरूर मिलता है। इसकी वजह यह है क्योंकि इमाम की ये दुआ है परवरदिगार इन्हें बिखेर दे। तो जिस कोने में भी जाओ वहां पर तुम्हें अहले बैत के चाहने वाले मिल जाएंगे। ये किसी और की दुआ नहीं बल्कि ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की दुआ है। अब अज़ीज़ान गिरामी जन्नतुल बाकी एक बहुत बड़ा मसला, बहुत ही बड़ा मसला। अच्छा क्योंकि इमाम रसूलुल्लाह ने ये नज़ीर दे दी है, रसूलुल्लाह ने ये नज़ीर दे दी है कि अगर जिसके दिल में अली की मोहब्बत पाई जाए वो मोमिन है और जिसके दिल में अली की मोहब्बत न पाई जाए वो अली से दुश्मनी रखता हो तो मुनाफिक है। अब आप ये खुद जान लीजिए कि अली और औलादे अली से दुश्मनी रखने वाला मोमिन है या मुनाफिक है। अगर मोमिन होते तो ये कभी कब्रों को ढाते नहीं, बल्कि ये मुनाफिक है जिसकी इस्लाम में सबसे कड़ी सजा है। बहुत तवज्जो, इस्लाम में जो सबसे कड़ी सजा का अगर कोई सजावार है तो वो होता है मुनाफिक। मुनाफिक वो है कि जो दिल में कुछ रखता हो और जबान से कुछ कहता हो। और मुशरिक जो हम समझते हैं मुशरिक बहुत बड़ा गुनाहगार है। मुशरिक तो सिर्फ खुदा में शरीक रखता है। मुशरिक तो वो है कि जिसने खुदा में शरीक कर लिया। मगर ये मुनाफिक वो है कि जो मुशरिक नहीं, जिसने खुदा का इकरार कर लिया। बहुत तवज्जो, खुदा का इकरार कर लिया, उसके रसूल का इकरार कर लिया, जबानी दिल नहीं, जबानी इकरार कर लिया मगर दिल में कुछ है, जबान में कुछ है। और जहाँ ये कुछ और कुछ हुआ वहीं पर बहुत कुछ हो जाया करता है। इसलिए जो है यहाँ पर लोगों ने दिल में रखकर सोचा कि हम दिल में बातों को रखेंगे और जबान से कुछ कहेंगे। मगर उनको क्या पता था कि ये वो है कि जिनकी तलवार 70 नस्लों को देख लेती है, तो इनकी निगाहें किन निगाहों को देखा करेंगी। आपने फर्क समझा कि मुनाफिक है कि जिन्होंने आले रसूल के रोजों को मुनहदिम कर दिया। सन 1925 में अगर कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए, जो हमारा जो ये चलता है एडी वाला, अगर इससे देखा जाए जो इंग्लिश कैलेंडर है उससे सिर्फ 5 साल बचे हैं 100 साल होने में। 2020 है, 2025 आने में 5 साल है। और अगर आप उर्दू चांद के एतबार का कैलेंडर देखेंगे तो 1344 हिजरी में। अब आप ये समझिए सिर्फ 3 साल बचे हैं 100 साल होने में। 3 से 4 साल बचे 100 साल होने में। ये बेगैरत मुसलमान किस नींद में सो रहा है कि जिसकी नस्लें बोलने को तैयार नहीं।
100 साल में कम से कम 3 पीढ़ियां गुजरती हैं। 3 पीढ़ियां मतलब गुजरने का मतलब ये कि 3 पीढ़ियां साथ होती हैं। 100 साल में 3 पीढ़ियां होती हैं। ये कैसी बेगैरत नस्ल मुसलमान है जिसने 3 पीढ़ियों से रसूलुल्लाह की बेटी की हिमायत में अपने एक अल्फाज को ज़बान से जारी नहीं किया। ये कैसे मुसलमान है कि जो ये कहते हैं कि हम खलीफा को मानते हैं, हमारे रसूल को मानते हैं। तुम कैसे मानने वाले हो कि न तुमने उस्मान गनी की कब्र के मुकाबले में कुछ कहने की जरूरत की, न तुमने जनाब सैयदा के रोज़े के सामने आने की कोई कोशिश की। तुम्हारा जुमलों का ना अदा करना, तुम्हारा एहतजाज न करना, इसका मतलब यह है कि तुम आले सऊद में हो, आले यहूद में हो। अगर तुम आले सऊद न होते, उनकी मोहब्बत दिल में न रखते, कम से कम एक जुमला तो कह देते। कोई बता दे मुझे, 1-2 की बात नहीं करता। मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये बात कहना चाहता हूँ कि तुम अगर रसूल को मानते हो और रसूलुल्लाह की बेटियों को मानते हो, तुम्हारे एतबार से अगर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा को मानते हो, तुम्हारे एतबार से 4 बेटियां हैं, तो उसमें एक जनाब फातिमा भी तो हैं। अगर तुम फातिमा को चाहते हो, रसूल की बेटियों को चाहते हो, एक न मानकर सही, कम से कम 4 में से तो एक मानो। तुम्हारे कदम तो आगे आने चाहिए। हम नहीं मानते 4 को, हम सिर्फ और सिर्फ रसूल की एक बेटी मानते हैं जिसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। आज उसकी कब्र वीरान है, तुम्हारे दिल में चैन कैसे है? ठंडे घरों में बैठे हो, एसी में बैठे हो, कूलर में बैठे हो, न जाने किस दुनिया में अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। तुम्हारे जहन, तुम्हारी गैरतें कहाँ चली गई कि तुमने रसूलुल्लाह की बेटी के मजार को मुनहदिम कर दिया। कोई बात नहीं कि उस वक्त ये जालिम और लईन थे, मगर तुम्हारा फरीजा क्या था कि तुम्हें उसके मुकाबले में आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। मगर मुसलमानों की जबान पे ताला लगा होना ये बताता है ये सिर्फ पैसों के पुजारी हैं, ये सिर्फ दिरहम और दीनार पे बिकने वाले हैं। अगर ये एहतजाज कर देंगे तो इनकी आमदनी होना बंद हो जाएगी। अगर ये एहतजाज कर देंगे तो ये जो वजीफा पाते हैं ये खत्म हो जाएगा। ये वहाबियों की सोच ये बता रही है कि हम सिर्फ पैसों को मानते हैं, हमारा दीन सिर्फ पैसा है, न रसूल का दीन है, न इस्लाम है, न कुरान है, न किताब है। आप वीडियो देखेंगे रसूलुल्लाह के पास, मैंने खुद वो वीडियो देखा कि जिसमें रसूलुल्लाह के पास पाकिस्तान से एक इंसान गया और वो अपने पास एक छोटी सी कागज की पुड़िया रखे हुए था, जिसे कहा जाए खत जैसे लोग देते थे, उस तरह से वो कई तय में करके खत रखे हुए था। और वो ये चाह रहा था कि रसूलुल्लाह की जरी तक पहुंचा दें। वहां पर एक हिंदुस्तान का ही है या तो पाकिस्तान का वो आदमी है, वो बिल्कुल उर्दू अच्छी बोल रहा था और उसने किसी ने बता दिया कि ये अर्जी देना चाह रहा रसूलुल्लाह की कब्र पे। फौरन वहां गया, छीन लिया उसकी और कहा ये क्या दिया, ताकि रसूलुल्लाह के लिए हमारे चाहने वालों ने, रसूलुल्लाह के चाहने वालों ने मेरे हाथ अर्जी भेजी है, अपने दिल की हाल के हैं। आप देखिए अज़ीज़ान किराम, वो लईन, वो खबीस जिसने उस पर्ची को लिया, उसके बाद कहा कि ये खोला, उसमें जो भी बातें लिखी गई थी उसको पढ़ने लगा। सबसे पहली बात, बहुत अगर इस्लाम का कोई मानने वाला है तो सबसे पहली बात यह है कि अगर खत किसी ने किसी को दिया है तो ये ममनू है, मना है कि उसके खत को ओपन करके पढ़ा जाए। बहुत तवज्जो करें। सबसे पहला कानून उस पर यह बनता है कि जिस खत को आपने देखा है उस खत को उस अमानतदार आपको बनाया गया ना, आप उस तक पहुंचा दीजिए। खत खोलकर देखना ये इस्लाम में हराम है, जान लीजिए। इसलिए क्योंकि उसने दिल की बात क्या कही होगी, आपसे क्या मतलब, आप कौन होते हैं? सबसे पहला हराम काम तुमने ये किया। अब उसके बाद जब खत खोल लिया, पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद कहीं ये खत किसको दे रहे हो? कहा रसूलुल्लाह को दिया गया। कहा कि तुमको पता भी है रसूलुल्लाह तो जाहिल थे, मालूम। उसने यही कहा रसूलुल्लाह उम्मी थे। उम्मी का मतलब रसूलुल्लाह अनपढ़ थे। और दलील क्या देता है कमबख्त? उसने ये कहा कि जब सुलह हुदैबिया हुई तो अगर रसूलुल्लाह को लिखना पढ़ना आता तो रसूलुल्लाह हजरत अली करमुल्लाह वजह से ये न कहते कि ये अली ये बताओ कि मेरा नाम कहाँ लिखा हो। ये नजीर, ये झूठों को, कमबख्तों को ये नजीर कहाँ से मिल जाती, किस किताब से कि रसूलुल्लाह ने ये पूछा? बल्कि रसूलुल्लाह ने वहां पर अपनी दस्तखत की है। दस्तखत करने का मतलब यह है कि वो अनपढ़ नहीं है, जिसे हमारी जबान में साक्षर कहते हैं। साक्षर मतलब जो हस्ताक्षर कर ले। रसूलुल्लाह ने अपने उस कलम से सिग्नेचर करके बताया कि देखो मैं वो हूँ
کہ جس نے تمہارے یہاں کبھی آ کر قرآن نہیں پڑھا ہے بلکہ میرے تو سینے پر قرآن نازل ہوا، ہمیں تو اللہ نے تعلیم دے کر بھیجی ہے، اور تم یہ جو نظیر پیش کر رہے ہو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے لکھوایا، تو لعنت ہو تمہارے اوپر۔ اس کے پیچھے رسول اللہ کا ایک منشا یہ تھا کہ دیکھو رسول اللہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر میرے لیے کوئی نوشتہ لکھ سکتا ہے میرے بعد، تو وہ علی ہے کہ جو نوشتہ لکھ سکتے ہیں، وہ علی ہے جن کو میں نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ میرا نام لکھ سکتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب حباس کے کتوں نے جب اونٹ پہ چڑھنے والی کے مقابلے میں جب بھونکنا شروع کیا، اس وقت جو ہے انہوں نے کہا کہ لگ رہا ہے کوئی معاملہ سامنے آئے، وہ رسول کی بات یاد آ گئی کہ دیکھو اگر حباب کے کتے اگر بھونکنے لگے تو یہ سمجھ جانا کہ وہ صحیح راستے پر نہیں بلکہ غلط راستے پر جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جنگ جبل میں جب علی نے کہا ہے بیٹا حسن جا کے ان سے کہہ دو اپنی نانی جان سے کہ اگر اس وقت اگر آپ واپس نہ گئیں تو ہم رسول اللہ کا وہ حکم صادر کر دیں گے کہ جو رسول اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا۔ جیسا یہ ہوئے سنا فوراً اپنے اونٹ کو موڑنے لگی۔ میں پوچھوں یہ ام المؤمنین مومن یہ بتائیے وہ کون سا حکم تھا کہ جو صادر کر دیتے علی تو پھر کیا غضب ہو جاتا؟ جب نہیں آواز دیں، وہ طلاق کا حکم تھا، علی نے وہ اختیار رسول اللہ نے وہ اختیار علی کو دیا تھا کہ علی اگر کوئی میری جانب سے اگر کوئی غلط کام کرے تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس سے طلاق دے سکتے ہو۔ جیسے ام المومنین نے یہ سنا فوراً اپنے رخ کو موڑ لیا۔ میں کہوں اے بدبخت مسلمانوں، ام المومنین سے درس لو۔ ام المومنین وہ ہے کہ جو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ذات علی کو کمال رسول ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں، چاہے وہ صحابی ہو چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو۔ سلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، یہ شرک و بدعت کے پجاری یہ خود نہ جانے کس نسل سے ہیں، کس کی اولاد ہیں۔ لیبل لگ جانے سے کوئی یہ نہیں ہوتا، وہ تو قیامت کے دن اللہ غفور الرحیم ہے۔ جو یہ اللہ جو ہے قیامت کے دن، اسی لیے اللہ نے یہ کہا کہ ہم تمہیں تمہاری ماؤں کے نام سے بلائیں گے، ہم تمہیں تمہارے باپ کے نام سے نہیں بلائیں گے، اس لیے کیونکہ نہ جانے کس سے کس خطا میں کس طرح سے انسان وجود میں آیا ہو۔ اسی لیے تو لوگ کہتے یہ ہیں کہ فلاں صاحب فلاں کے بیٹے تھے، نہ جانے تھے بھی کہ نہیں تھے، ولد الکثیر تھے کہ ولد فلاں ابن فلاں تھے۔ یہ تو تب معلوم ہوگا کہ جب ہمارے امام آ کے بتائیں گے کہ کون کیسا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب جناب عقیل پہنچے دربار میں معاویہ کے، اور اس وقت یہ کہا کہ جو ہے انہوں نے لکھا کہ معاویہ ابن ابو سفیان، فوراً جو ہے جناب عقیل نے کہا کہ معاملہ کچھ صحیح نہیں لگ رہا ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ ارے میں ابو سفیان کا بیٹا ہوں، کہا کہ جا کے پہلے اپنی اماں سے تصدیق کر کے آؤ پھر ہم سے آ کے بولنا۔ اب جیسے ہی پہنچے اور اس کے بعد جا کے ماں کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا یہ بتاؤ میں کس کی اولاد ہوں؟ کہا کہ تمہیں یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیا؟ کہا میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیے۔ ہاتھ میں شمشیر لیے ہے۔ فوراً کہا کہ یہ بتاؤ کیا تمہارے دربار میں عقیل تو نہیں آ گئے ہیں؟ کیونکہ عرب میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو عقیل کے مقابلے میں نسلوں کی پہچان رکھتا ہو۔ سلوات بھیجے محمد عقیل وہ ہیں، مولا علی کے بھائی وہ ہیں کہ جو نسلوں کو پہچانتے ہیں۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ جب نسلوں کی بات آئی تو مولا کائنات جناب عقیل سے مشورہ کیا، میرے بھائی عقیل مجھے اس شجاع بہادر خاندان کی عورت سے نکاح کرنا اور شادی کرنا ہے جس سے ایک فرزند پیدا ہو جو دلیر اور بہادر ہو، میرے لال حسین کی کربلا مدد کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، کیونکہ کل جنت البقیع ہے، کچھ الفاظ کچھ باتیں کہنا ضروری تھی، اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی احتجاج کو بلند کیا جائے۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ آپ اپنے موبائل، اپنے واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، جس طرح سے بھی آپ اپنی ساری باتوں کو پہنچاتے ہیں، اسی طرح سے آل سعود پر لعنت کے ساتھ اپنی پوسٹ کو ایڈٹ کریں اور اس کے بعد یہ لعنت وہاں تک پہنچائیں اور جناب سیدہ کی قبر پر روضہ بننے کی سفارش کریں اور گزارش کریں کہ آج سارے لوگ ہمارا ساتھ دیں کہ ہم جناب سیدہ کا روضہ پھر سے تعمیر کر سکیں۔ عزیزان گرامی، آپ یہ سوچیں کہ اتنی بڑی مصیبت و قیامت ہے کہ جس کے جتنے لال ہوں سب کے روزے جو ہے وہ چمک رہے ہوں، چاہے وہ امام حسین ہوں، چاہے وہ
इमाम हुसैन से लेकर जितने इमाम हैं, वो चौथे इमाम, पांचों छठे इमाम जो खुद बकी में हैं, आज उनके भी मज़ारात नहीं हैं। बाकी के रोजे जो है वो सोने और चांदी में बने हुए हैं। हाँ, जब ये बेटे अपने रोजे पे चांदी और सोने की को लगा हुआ देखते होंगे तो इनके दिल पर क्या बीतती होगी कि हाय जो हमारी माँ है उसका रोजे पे आज छत भी नहीं है, आज कुब्बा भी नहीं है। अज़ीज़ान किराम की जन्नतुल बकी वो जन्नत है कि जिसे मुसलमानों ने अपने हाथों से उजाड़ा है। लोग जन्नत को संवारने की कोशिश करते हैं अपने अमाल से, मगर ये वो मुसलमान थे जिन्होंने जन्नत को खुद अपने हाथों से उजाड़ दिया। हाँ अज़ीज़ान किरामी, इस जन्नतुल बकी में कौन कौन है? जनाब सैयदा की कब्र है, जनाब इमाम हसन, जनाब इमाम सईद सज्जाद, इमाम मोहम्मद बाकिर हैं, इमाम जाफर सादिक हैं जो एक कुब्बे में थे। जनाब अब्बास जो रसूलुल्लाह के चचा हैं वो सराहने की जानिब हैं। हाँ, जनाब उम्मुल बनीन की भी कब्र वहीं पर है, जनाब आमिना की कब्र वहीं पर है, जन्नतुल मुअल्ला में जनाब खदीजा की कब्र है, जनाब अबू तालिब की कब्र है। ये सारे कुब्बे गिरा दिए गए। लानत हो आले सऊद पर। अब्दुल अजीज इब्ने आले सऊद ने ये काम किया है। अज़ीज़ान गिरामी, जिसने जन्नतुल बकी को गिराने की और जन्नतुल मुअल्ला को गिराने की एक अजीम पहल की थी, मगर खुदा लानत करे ऐसे लोगों पर कि जिन्होंने किसी भी तरह से इसमें साथ दिया हो। ये खुदा की लानत ही तो है कि जो आज सारी दुनिया जो है वो सऊदी गवर्नमेंट चाहे किसी भी तरह के लोग हों वो उसके जुल्म का तस्करा जरूर करते हैं, इसलिए क्योंकि ये जालिम हमेशा के रहे। ये वही जालिम हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह की बेटी के नविश्ते को फाड़ा, जिन्होंने बाबे फदक को छीन लिया। ये वही जालिम है जिन्होंने आग और लकड़ी से सैयदा के घर पर आग लगा दी। जनाब सैयदा कौन? सैयदा जिसने अरे पूरी जिंदगी मसाइब व आलाम में गुजारे हैं। जनाब सैयदा 3 या 4 बरस की ये बेटी थी जब जनाब खदीजा इस दुनिया से जा रही थी। हाल वो तमसीनी का आलम, फिर उसके बाद 9 साल पर ब्याह के शौहर के घर गई हैं। 9 साल बाप के घर में वो खिदमत अंजाम दी कि रसूलुल्लाह को कहना पड़ा फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। हाँ, ये लोग कैसी बाप की माँ थी जिसने अपने बाप को वो शफकत अता की कि रसूलुल्लाह को कहना पड़ा। हाँ दीदान गिरामी, जब रसूलुल्लाह जाते थे तबलीग को और वापस आते थे तो यही जनाब सैयदा अपने बाप के जख्मों को मरहम लगाती थी, अपने बाप के सर को अपने जानू पर रख के कहती, ए मेरे बाबा घबराइएगा नहीं, अरे कल फिर से आप जाएंगे और तबलीग करेंगे। ये वही सैयदा है जिसने बाप के घर में ये किरदार निभाया। मगर हाँ, एक वो भी सैयदा है जिसने बाप के बाद वो जुल्म सितम सहे, सुब्बत अलैया वसाइब कलमा पढ़ रही है, मर्जिया अपनी तमाम पे जारी करती हैं। सुब्बत अलैया में सन्ना ले लिया, ए मेरे बाबा अगर जो मसाइब मुझ पर पड़े, अगर ये दिन में पड़ते तो ये रात में तब्दील हो जाते, अगर ये पहाड़ों पे पड़ते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ज़हरा खुदा कोई गम न दे सिवाय हमें सरकार सईद शुहदा के। हाँ निदान गिरामी, जनाब सैयदा वही सैयदा है जिसको जिंदगी में भी चैन न मिला और मरने के बाद भी चैन न मिला। आप सुनते रहते हैं ना, मौलाए कायनात ने 40 कब्रें बनाई थी। ये क्यों बनाई थी? अरे लोग आए सुबह में और कहा कि अरे हमको सैयदा की जनाजे पर नमाज पढ़ना, लानत हो मुसलमानों पर। इन्होंने कहा अपनी हम सैयदा की लाश को फिर से निकालेंगे और उस पर नमाज जनाजा पढ़ेंगे। अरे मुसलमानों तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? हाँ दीवानी गिरामी, मौलाए कायनात कब्र पे बैठ गए, किसमें मजाल है जो अली का सामना करे। मगर अज़ीज़ुल ज़हरा की कब्र का आज ही पता नहीं है। 3 जगह हैं जहाँ सैयदा की कब्र का निशान बताया जाता है। एक को जन्नतुल बकी, वहाँ जहाँ इमाम दफन है। दूसरे रसूलुल्लाह के मिंबर और रौज़े के मिंबर और मेहराब के दरमियान में बताया जाता है। तीसरे कुछ जनाब सैयदा के हुजरे में वो जगह है। ये तो तब मालूम होगा जब हमारा इमाम आएगा और ये बताएगा कि मेरी जद्दा फातिमा की कब्र कहाँ है। ए मेरे परवरदिगार, इन जालिमों को निस्तो नाबूद कर दे, जल्द से जल्द जनाब सैयदा का रौज़ा बन जाए। हाँ, इसमें 4 इमाम और हैं। ये चारों वो इमाम है जिन्हें जहर से शहीद किया गया, सबको जहर दिया गया, किसी को दीन पे दिया गया,
قبر سیدہ اور امامان کی جلد سے جلد تعمیر ہو جائے. اللہ